Okay, guys, please confirm. Am I audible? Online people, please confirm, guys. Am I audible? Fine, thank you. Okay, guys, so we were on the rack pipeline. So what we'll do, we'll go stepwise and see what are the extra things that we are getting in the advanced rack pipeline. Correct? So guys, थोड़े बहुत concepts है, right, which is related to the computer science, right? So let me start with the step one, right? So first of all, you need to build a document systems. Okay. Let's take you are having a document. Let's take document one. Like any document, Python is a programming language. Let's take you are having a second document too. Let's take Hugging Face is easy. Right? Document three. Let's take Transformers are the neural network. Fourth one, document four. Let's take it is having Transformer is invented by Google. Correct. So these are the general things that documents that we have, guys. Okay. Now the main thing here is once you got this document, right? We cannot give the entire document to the LLM, right? First question. Why we can't give the entire document to LLM? Rushi. I'll ask so many questions ताकि आपके रैक के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाए. Right. हाँ. Why we are not giving the entire document to LLM? नया रैक बना है इसने. हाँ. इकडे काहीच नाही ना क्वेश्चन मी सांगितलं ना. यस बताओ आर्यन. आंसर. Why we can't give the entire document to the LLM? Constraint है guys, context window का. कहा privacy constraint about the context window. We cannot give a information more than the context window side. जितना आपके LLM का context window will take the number of tokens. उससे ज्यादा हुआ तो you need to pay per token charge. Right, fine. This is the most important thing. And second thing is we will not pass like this. Means what we will do, then how we are passing this documents. We are passing the documents into a chunks, right? Passing through a chunks. Correct. So we are having a many types of chunk, guys, है ना. जो भी chunks आप आपके प्रोजेक्ट में यूज करने वाले हो, जो भी चंकिंग टेक्निक्स है उसके बारे में पढ़ के जाइए. Whenever you are having an interview related to the AI engineer और जो भी है LLM, है ना. So whichever the techniques, whichever the chunking techniques, जैसे कि fixed size है, right? Variable size है, recursive chunking है. Most of the cases recursive chunking will work very good, guys, right? Agentic है. So you can have a many kinds of a chunking. So whichever the chunkings that you are using, make sure that you are reading, है ना. वो सारी चीजें आप पढ़ के जाइए. Fine. This is the second thing. Now what we will do, you will convert this document into chunks, right? So convert
all this document into a chunks. Correct. So let's take, I am converting straight forward लिखता हूं, document 1 को मैंने chunk 1 में convert किया, document 2 को मैंने chunk 2 में convert किया, document 3 को मैंने chunk 3 में convert किया, and document 4 को मैंने chunk 4 में convert किया. Correct. This is the usual thing is happening in the first step, that we are creating a document based system. Then again, we are trying to convert that documents into the chunks. Correct. Once you convert it, guys, next step, step 2, right? This chunks now needs to be converted into vectors, right? So chunks needs to be converted into vectors. इतना समझ लीजिए guys कि यहाँ पे हम बात करें embedding का. करेक्ट. और यहाँ पे आई एम यूजिंग अ बाय एनकोडर, राइट, इस प्रोसेस के लिए, राइट. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यू आर हैविंग अ चंक्स नाउ, दिस चंक्स आई एम गिविंग इट टू दी, लेट्स टेक जो भी है बर्ट, you are using a BERT model जो भी है, right, and you are giving here vector, right. Let's take chunk 1, you are getting here vector 1. Similarly for chunk 2, chunk 3 and chunk 4, you are getting all the vectors here. These are all the chunks you are getting. This is the vector 2. Similarly, this is the chunk 3, you are getting a vector 3 here. Correct. You got your all the 4 vectors guys here. Correct. Once you got all this vector guys, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, embedding, right? You can use a sentence transformer also to do these things, but we are using here BERT model. तो आपको पता है usually BERT means each word is getting converted into 384 or 400 dimensions, right? That will be the embedding vectors for that one. Correct. So now what we are trying to do, we are storing this vectors into a vector database. करेक्ट. तो अभी क्या सिनारियो हुआ कि लेट्स टेक आई एम हैविंग अ वेक्टर डेटाबेस हियर, दिस इज माय वेक्टर डेटाबेस. Here for a chunk 1 I'm storing a vector 1, for a chunk 2 I'm storing a vector 2, chunk 3 I'm storing a vector 3, and chunk 4 I'm storing a vector 4. This is my vector database. समझा क्या? दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ द बाय एनकोडर. क्या कर रहा है बाय एनकोडर आपका यहाँ पे कि इट इज टेकिंग द थिंग्स, टेकिंग द चंक्स एंड ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू द वेक्टर. आप यहाँ पे बहुत सारे डायग्राम में ट्रांसफॉर्मर दिया है. सो एंड ऑफ द डे BERT इज आल्सो अ ट्रांसफॉर्मर, इट इज आल्सो फॉलोइंग द ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर ओनली. करेक्ट. नाउ कोई गाइस एक क्वेश्चन है, दिस वन यू आर क्रिएटिंग, तो मुझे बताओ कि ये स्टेप, दिस स्टेप will run only one time or every time? क्वेश्चन है कि क्वेश्चन, लेट्स टेक राइट फॉर्म द क्वेश्चन, this steps will run only one time or every time, and the similar kind of question, when it will rerun this step. आपने आपको चंक्स को वेक्टर में बनाना है, एंड दैट वेक्टर यू आर ट्राइंग टू स्टोर इनसाइड द वेक्टर डेटाबेस. तो मैं वेक्टर डेटाबेस के बारे में कुछ नहीं बोल रहा बिकॉज यू ऑलरेडी नो, बट आई विल आस्क द क्वेश्चन बिकॉज आपने पढ़ा है तो, राइट. So what we'll try to do now, the question is this steps will run only one time or every time, or when it will return rerun this step. देखो guys, ये step कोई बता सकता है इसका आंसर? रॉन्ग आंसर. दिस स्टेप विल नॉट रन एवरी टाइम. देखिए आपने डॉक्यूमेंट दिया, all the documents are getting converted into chunks, right?
Once it is getting converted into chunks, now you are storing into the vector database in the form of vectors. तो आपके ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंट वेक्टर डेटाबेस में, अनलेस कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट चेंज करो तो ही ये स्टेप रिटर्न होगा. समझा क्या? बट अल्टीमेटली जितने भी आप 10,000 पीडीएफ दे रहे हो, 20,000 पीडीएफ दे रहे हो, every pdf is getting converted into chunks, getting converted into the vectors, and that vectors is getting stored into the vector database. अगर अभी मैंने कोई डॉक्यूमेंट में चेंज किया, देर अनलेस वी आर चेंजिंग एनीथिंग इन द डॉक्यूमेंट, ये स्टेप कभी रिपीट नहीं होगा, particularly for that kind of a problem state. समझा क्या? Right. So what I'm trying to say, this steps only run once, unless a document is changed, unless the document is getting changed. समझा क्या गाइस? ये सबसे क्रूशियल पार्ट, इसलिए मैंने कल बोला था कि एट इवैल्यूएशन टाइम हम इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंसीडर नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने बोला था कि दिस इज ऑलरेडी ट्रेन. अगर कल का सेशन आपको याद होगा, राइट? दिस इज द सेकंड थिंग, सेकंड स्टेप. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग गाइस? नाउ यू विल गेट अ क्वेरी. स्टेप 3, करेक्ट? We'll get a query from user. आपको यूजर से क्वेरी मिला. लेट्स चेक, दिस इज द क्वेरी. लेट मी राइट डाउन. व्हाट इज अ ट्रांसफॉर्मर? This is the query that you got. Now this query also needs to be converted into vector ना. So again you are using देखो, अब जो by encoder है मैं इसलिए यूज कर रहा हूं. For this purpose I am using now. The one task of the by encoder is already done, that it is doing the embedding for you, right? Embedding कर रहा है तो आपको embedding score दे रहा है वो. यहाँ पे second step में क्या रहा है? This query I am giving it to the again encoder, or you can say that same BERT. Now this BERT is again giving you the embedding vector. Correct? Now you have converted your query into the vectors. Now the next question, guys, is this step is not enough to predict or to give a result. जहां पे मैं क्या कर रहा हूं गाइस कि सपोज फॉर एग्जांपल कि whenever I am converting a query into a embedding vectors, now what is the next thing I need to do? यहाँ पे sorry, एक step में ऐड कर देता हूँ. Question 4, step 4, we'll do a similarity search now, vector search, right? And vector search is based on the similarity search. उठा लो भाई. Vector search is based on the similarity search, correct? Right? So similarity search means you are generally you are using a cosine distances, right? This kind of thing that you are usually using. My question is, what is this step is not enough to give the result? ये step enough नहीं है result देने के लिए. देखो guys, इसके multiple answers. First thing, let's take, I'm asking a question. Let's take your query will be like this. I'm asking you what is, or let's take who invented a transformer. Correct? And I'm getting a relevant thing. Suppose I'm searching into the vector databases. Let's take, I'm getting a first one. Statement 1. My statement के form में लिखता हूँ. Transformer is a neural network. Right? Second statement I'm writing, let's take transformer also have encoder and decoder. Correct? Sentence 3, I'm telling that transformer is invented by Google.
यू आर हैविंग अ सिमिलर काइंड ऑफ अ सेंटेंसेस गाइस, राइट? नाउ अगर आप बोलोगे यहाँ पे गाइस दिस ऑल दिस सेंटेंसेस आर करेक्ट, अगर मैं सिमेंटिकली जाऊं तो it is showing that all these sentences are related to the query, right? बट हमने एक चीज देखा था कि कहा particularly at what stage the semantic search is getting failed. जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था स्कोर वाला, जैसे मैंने एप्पल लिखा तो उसने सैमसंग के साथ ज्यादा स्कोर दे दिया, सिमिलैरिटी स्कोर। जैसे मैंने राइप एप्पल लिखा तो द स्कोर इज गेटिंग चेंज। सो दैट्स द रीजन गाइस, दिस इज द फर्स्ट रीजन दैट द semantic score will work good sometimes only, आपके तरह। It will work good sometimes only, correct? Second thing is usually this is the one reason, this is the first reason, reason one। second reason मैंने आपको बोला था कि time complexity, reason two, because in this entire section, इस पूरे entire section में you required a, or you can say that this entire procedure will take a lots of time, right? So time complexity will increases। बराबर है क्या? सोच के बताइए, कुछ भी लिख रहा मैं। वेक्टर सर्च इज अ फास्टेस्ट सर्च केस, राइट? वेक्टर सर्च जो है आपका फास्टेस्ट सर्च है यहाँ पे। सो हियर क्या हो रहा है कि द प्रॉब्लम इज नॉट अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हियर, राइट? बिकॉज इट इज यूजिंग अ अप्रोक्सीमेट नियर ना, अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट नेबर, एंड वी नो दैट इट इज अ फास्ट बट नॉट एक्यूरेट। बराबर, आपका अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट नेबर फास्ट है बट एक्यूरेट नहीं है। तो यही प्रॉब्लम हो रहा है कि ये सारे सेंटेंस का स्कोर वो ज्यादा दे रहा है, but we are not at all getting the relevant one. This is the problem, no? So that's the reason to give a result, this step is not at all enough, right? But इतना जान लीजिएगा यहां तक जो भी हो रहा है, यहां तक this everything will be done by the BioEncoder, right? कौन कौन सी चीजें कर रहा है वो? आपका जो मेन एम्बेडिंग है डॉक्यूमेंट का, इट इज डन बाय द बायोएनकोडर, एंड वॉट एवर द क्वेरी ऑल्सो यू आर गिविंग दैट इज ऑल्सो गेटिंग डन बाय द बायोएनकोडर ओनली। बट remember one thing, the first step where you are converting all the document into the embedded vector, that is happening only one time, unless कि आप फिर से कोई नया डॉक्यूमेंट ना दे दो, right? This is the second thing. Now step 4, step 5 guys, step 5 में क्या होगा कि you will get a top 30 or top 50 relevant document, right? We will get a top 30 or top 50 relevant document। आपको टॉप 30 या टॉप 50 relevant document मिलेंगे। तो इसका मिलने के बाद what I need to do here, the cross encoder will come into scene, right? Here the cross encoder will come into scene। What cross encoder is doing guys, it has two things now। क्रॉस एनकोडर के पास दो चीजें अभी, क्रॉस एनकोडर इज हैविंग अ क्वेरी वेक्टर प्लस क्रॉस एनकोडर के पास है आपके पास दी सजेस्टेड वेक्टर, जो आपके रिलेवेंट वेक्टर्स, राइट? नाउ अगेन क्रॉस एनकोडर स्टार्ट कंपेयरिंग क्वेरी वेक्टर विथ ईच एंड एवरी रिलेवेंट वेक्टर, राइट? सो आपका क्रॉस एनकोडर क्या करेगा, स्टार्ट कंपेयरिंग द क्वेरी वेक्टर विथ ऑल द रिलेवेंट वेक्टर। यहाँ पे सब एग्जामाइन हो रहा है इस कॉन्टेक्स्ट, एवरीथिंग इज गेटिंग कैप्चर, बिकॉज ये क्रॉस एनकोडर भी ट्रांसफॉर्मर भी यूज कर रहा है। लेट्स टेक, मैं यहाँ पे भी यूज कर रहा हूँ बर्ट, राइट? फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग लाइक दिस, मैं यहाँ पे लेट्स टेक आई एम यूजिंग अ बर्ट।
Here I'm giving my query vector and my each and every context vector. Now here this transformer is generating a score. करेक्ट, यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मर जो है वो कोड को स्कोर जनरेट कर रहा है बेस्ड ऑन दिस. सो हियर व्हाट विल हैपन, एंड इट विल जनरेट a score, right? You can call it the semantic score, similarity score. Once we generate a score, what is happening, guys? Here the re-ranking will come. Right? It is try to sort all the scores in the descending order. Right? It will sort all the score in the descending order. आपको सारे score मिल गए. आपको समझा ना cross encoder कहां से start हुआ? So you got all the score in the descending order. Let's take now we have picked top 3 from the highest score. आपने टॉप 3 पिक कर लिए. नाउ यू गॉट अ टॉप 3 वेक्टर्स v1 v2 v3, right? You got here v1, let's take v2, and you got here v3. Now step 6. Now guys, what we need to do, we need to combine these two vectors. कौन कौन से? ये जो 3 वेक्टर्स है और आपका क्वेरी वेक्टर्स. सो योर क्वेरी वेक्टर and this v1 v2 v3 are getting combined, right? To understand the query and to understand the context. To understand query and the context. Once it is getting combined, guys, जैसे वो combined होते हैं, you are having a step 7. You are passing this two things to the LLM, right? We are passing. ये क्यों कर रहे हैं guys आप? Because you are generating a new prompt. This is the new prompt creation, right? So these things are passing. These things we are passing to the LLM. No? And based on this, LLM will generate an answer. LLM will generate a final answer. Okay. This is the usual thing is happening. है ना? ये पूरा आपका रैक का पाइपलाइन है. That how exactly the things are happening. तो थोड़ा आइए क्रॉस एनकोडिंग पे. ओके, क्वेश्चन अगेन क्वेश्चन है ना. एक क्वेश्चन तो मैंने बता दिया कि why we are not using this re-ranking in place of the by encoder. Correct. The question is why we are not using re-ranking before instead of by encoder. Right. The first reason will be a time complexity. And second reason will be, guys, key it is not converting this your documents into the vector. By cross encoder ये काम नहीं करता, right? Your by encoder will do these things, that it is converting the documents into the semantic vectors, right? But cross encoder will not convert documents into a semantic vector. Correct? Correct. This is the pipeline, guys, है ना? आप आई होप यहां तक सबको समझा था कि हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग, व्हाट इज द बाय एनकोडर, व्हाट इज द क्रॉस एनकोडर. अब देखिए गाइस कि जैसे ही आपको रैक पाइपलाइन पता चली, वो आप क्या करते हो, यू स्टार्ट बिल्डिंग अ रैक प्रोजेक्ट. ठीक है, तो रैक प्रोजेक्ट जैसे ही आपने बनाया तो फिर आपको लगता है कि हमको रैक आ गया, है ना? सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, गाइस. करेक्ट. नाउ अंडरस्टैंड, आई एम हैविंग अ टू डॉक्यूमेंट्स. Document 1, right? I'm telling that company A has a revenue of, let's take $10 million, right?
Let's take, I'm having a second document, document 2. I'm telling the company B has revenue 100 million. Correct. This is the document that I have in the vector databases. Let's take, I have done the embedding and I have documents in the vector. Now my query is, give the company which is having a revenue above 100 millions. This is the first question. Right. So देखिएगा कैसा ना, usually क्या है कि आपके पास you have given a two documents. Document 1 is telling that company A has a revenue of a 10 million. Company B has a revenue of 100 million. Now the query is what? Give the companies which is having a revenue above 100 millions. Correct. तो guys आपका encoder क्या कर रहा है? Encoder is trying to convert this into a embedding. ठीक है. अब एक चीज समझ लीजिएगा इसकी, in between your text, right? In between your text, suppose you are having a number, right? जैसे कि मान लीजिए कि I have a text plus number in the documents. Now the question is how the encoding will be done? How the encoding will be done? Anybody know? क्योंकि आप तो यही अज्यूम करके चल रहे हैं कि पूरे डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट है ना? सो इफ द डॉक्यूमेंट विल कंटेन, लेट्स से केस फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट भी है और नंबर्स भी है. करेक्ट. इट्स नॉट लाइक दैट इट इज हैविंग अ टेक्स्ट, टेक्स्ट का एम्बेडिंग कर देते हैं सही से, नंबर्स का एम्बेडिंग कैसे करेंगे कैसे? राइट. यू हैव टू डू अ नंबर एम्बेडिंग ना. पहला इस क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया आपको कि आपके डॉक्यूमेंट्स में फाइनेंस डॉक्यूमेंट है, आपको रैक बनाना है, राइट? व्हाट विल बी द आंसर? सिंपल सी बात है कि अब तक हमने क्या किया कि नंबर हो या कुछ भी हो, वी आर कंसिडरिंग इट एज अ टेक्स्ट. टोकन कंसिडर कर रहे हैं ना. सो वी आर कंसिडरिंग एज अ टोकन. पर यहां पे दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट होगा. whenever I am doing a embedding, whenever I am doing a embedding, मैं जब भी एम्बेडिंग कर रहा हूं यहां पे, तो मुझे वो कभी भी ये नहीं बताएगा, कोई भी एम्बेडिंग आपको ये नहीं बताएंगे ये इससे ग्रेटर है. एम्बेडिंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन. वो सिर्फ सिमेंटिक मीनिंग बता रहा है आपको. राइट. आई एम टेलिंग दैट हियर एम्बेडिंग इज ओनली टेलिंग अ semantic meaning. It is not responsible for doing any अरिथमेटिक ऑपरेशन कोई भी ऑपरेशन करने के लिए वो बाध्य नहीं है. उसको पता ही नहीं है कि ये कैसे होता है. बिकॉज द रीजन इज व्हाट, कोई भी एलएलएम भी पकड़ लीजिए आप, बिकॉज द होल गेम ऑफ द एलएलएम इज बेस्ड ऑन द सेमेंटिक मीनिंग. फॉर एग्जांपल गाइस, जैसे कि मान लीजिए कि आपके इसको क्या समझ रहे, अगर मैंने यहां पे लिखा रेवेन्यू इज लेट्स टेक $10 million, और मैं लिख रहा हूं यहाँ पे रेवेन्यू इज $100 million. अगर मैं एम्बेडिंग करूं इसका, तो दिस बोथ डॉक्यूमेंट्स आर वेरी क्लोजर. सिमिलर मीनिंग देंगे वो, सिमिलर काइंड ऑफ. सो दिस विल गेट अ सिमिलर मीनिंग. बट गाइस, जमीन आसमान का फर्क. वन कंपनी इज हैविंग अ $10 million and another company is having the $100 million revenue. करेक्ट. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके. तो जब भी आप प्रोडक्शन में अगर रैग लेके जा रहे हो, राइट, लेट्स टेक यू आर बिल्डिंग अ प्रोडक्शन सिस्टम, राइट? सो लेट्स टेक दिस इज योर प्रोडक्शन सिस्टम. This is your production system.
where you are having LLM and you are having, let's take here kind of a vector databases and you implement a RAG, right? आपको लगता है क्या इस रैग केवल वेक्टर डेटाबेस तक ही सीमित है? इट इज नॉट अ केस केस। सिर्फ रिट्रीव, मैं वेक्टर डेटाबेस को रैग बोल रहा हूं क्या? आई एम कॉलिंग वेक्टर डेटाबेस एज अ रैग। प्रोसेस है गाइस, रैग इज अ प्रोसेस। रिट्रीवल अग्यूमेंटेड जनरेशन, वेक्टर डेटाबेस इज नॉट अ रैग, है ना? दिस इज द प्रोसेस, करेक्ट। बट गाइस रिमेंबर वन थिंग, इस केस में अगर मैं बोलूं यहां पे कि टू गेट दिस काइंड ऑफ आंसर, टू गेट this kind of answer, your vector database is not enough. Vector database is not enough, करेक्ट। अब एक चीज है कि यू गो विद स्ट्रक्चरल रिट्रीवल। आपके प्रोडक्शन में आप एक स्ट्रक्चरल रिट्रीवल भी लिखिए वेक्टर डेटाबेसेस के अलावा। सो आई एम कीपिंग ये स्ट्रक्चरल रिट्रीवल। सो लेट मी कीप हियर स्ट्रक्चरल, नाम ही पढ़ा गया स्ट्रक्चरल रिट्रीवल, बोले तो आपका रिलेशनल डेटाबेस। दिस इज द सिस्टम डिजाइन गेस, है ना? इफ दिस काइंड ऑफ, बिकॉज इफ यू आर अ सीनियर AI engineer, तो you have to think where exactly the RAG is getting failed in the production, right? तो यहाँ पे आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा बिकॉज यू आर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर, तो आपको पता है कि कहाँ हो सकता है फॉल्ट, राइट? सो यू नीड टू ऑलवेज गेट अ रूट कॉज कि जिसको मैं प्रोडक्शन में हैंडल कर पाऊं, राइट? सो हियर you have to keep a structural retrieval here, right? So I'm telling that to get this answer, to get this answer, we need to keep a structural retrieval. तो structural retrieval बोले तो you can consider, in this case it will be a relational database. देखो इतना नहीं पूछेगा आपको कोई, है ना? ठीक है कि क्या है स्ट्रक्चरल रिट्रीवर्स एंड वी आर ट्राइंग टू सॉल्व इट, है ना? बट हाँ अगर पूछ लिया तो समझ लेना बहुत कुछ बड़ा देने वाला है आपको, ठीक है, पैकेज। सो यू आर गेटिंग हियर रिलेशनल डेटाबेस इन दिस केस, ओके। सो क्या करेगा गाइस, यूजुअली यू आर राइटिंग अ क्वेरी, मैं ऐसा क्वेरी लिख दूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अ कंपनीज वेयर आपका रेवेन्यू इज ग्रेटर देन 100, ऐसा कुछ क्वेरी में लिख दूंगा। नाउ दिस क्वेरी इज रिस्पॉन्डिंग मी ना, राइट? दिस क्वेरी will respond a list of a company. It will respond a list of a company. That list and the query, कौन सी query? Query vector. That we will give it to the LLM. That we will give it to the LLM. Now guys, ये थोड़ा trustworthy है ना as compared to the semantic meaning. So the structural retrieval is a better choice, than the semantic meaning. करेक्ट। रिमेंबर गाइस, प्रोडक्शन में बहुत इश्यूज आता है, पर्टिकुलरली व्हेनेवर यू आर फिक्सिंग और यू आर ट्राइंग टू लॉन्च समथिंग, तो आपको उन चीजों को प्रोडक्शन में लेके जाना पड़ता है। एंड यूजुअली सारे इशू जो है आपके प्रोडक्शंस में ही आते हैं, आपको पता चलता है कि कितना कितना अच्छा सिस्टम आपने बनाया, कितना खराब बनाया है आपने, राइट? इट लिटरली आपको समझ में आता है कि वंस यू वेंट इनटू द प्रोडक्शन, राइट? क्योंकि अभी के हिसाब से प्रोडक्ट सही चल रहा है, राइट? आपको लग रहा है मैंने दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट बना दिया, राइट? बट वंस इट केम इनटू द प्रोडक्शन, आपको पूरा प्रोडक्ट का हाल दिखाई देता, कभी ऐसे फील होता है कि पूरा रीबिल्ड करना पड़ेगा, राइट? दिस इज द यूजुअल थिंग कैन हैपन गाइस, राइट? पर्टिकुलरली, और डेफिनेटली यू नीड टू इंप्लीमेंट अ रैग इन द प्रोडक्शन। तो सिर्फ वेक्टर डेटाबेसेस आर आल्सो नॉट इनफ, समटाइम्स यू हैव टू डू अ स्ट्रक्चरल रिट्रीवल, बिकॉज मुझे पता है कि in this case the relational database will give me the better answer इस केस में, बिकॉज
Your embedding is not responsible for doing any kind of mathematical operation guys. वो मैथ अगर मान लो मैंने 20 दे दिया और 30 दे दिया, तो एम्बेडिंग क्या बोलेगा, दोनों सिमिलर है, ये नहीं बोलेगा कि 30 ग्रेटर देन 20 है, राइट, बिकॉज उसको नहीं आता है कंपैरिजन. He only knows how to get a similar kind of a thing, right? So based on the problem statement, you have to keep that thing in the production, particularly in the case of RAG, right? दूसरा solution है guys, there is a very famous technique called RM25, right? Another approach. किसमें? जब आप पाइपलाइन क्रिएट करते हो ना, तभी. अब एक सिंपल सी बात है गाइस, देखिए, आई विल टेल यू वन थिंग. एक एग्जांपल बताता हूं, देखिए, मान लीजिए कि यू हैव बिल्ड अ system, production system, you have built it, correct? Now you are having a vector database and you are having a structural retrieval also. Now the query came, vector के फॉर्म में query आया है. अब मुझे पता है कि they are asking about the arithmetic operations. जैसे आप क्वेरी को डिकोड कर रहे हैं, यू गॉट टू नो दैट यू नीड टू परफॉर्म द अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है. अब दूसरा चीज ये होगा कि अब मुझे पता है कि your your vector databases will not give you this answer, and because your LLM is not able to identify this which is greater than and which is smaller than, so what will happen in this case guys, we have to bring a structural retrieval in that case. अब आपका क्वेश्चन है कि सर कैसे क्वेरी कन्वर्ट होगा और डेटाबेस पे अप्लाई होगा और कैसे मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा गाइस. तो गाइस देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल यूज केस ऑफ अ BERT कन्वर्टिंग नेचुरल लैंग्वेज टू द SQL क्वेरी, राइट. बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है. You write a sentence in the natural language, it is converting the things into SQL query, right? So that query is getting applied on the relational data. और guys ये pipeline है पूरा, है ना? This all things are in the same space, right? तो automatically the things are getting, right? So यहाँ पे आप इसको action में लाने के लिए you will using the agents, right? He will plan, he will build a query for you based on the problem statement, and he will pass to the relational database, and the structural retrieval will give you the response, and that response will pass to the LLM, right? So many things I guess. एक ही आप अभी जैसे अपन ने पढ़ा, आपको एक चीज समझ, LLM के बाद सिर्फ मैं वेक्टर डेटाबेस दिखा रहा हूँ, right? There will be a tool calling guys, there will be the agents who is planning, taking the action, you can have a structural retrieval, many things. इसलिए तो एजेंटिक सिस्टम डिजाइन क्यों बूम पे है, यहाँ पे तो नहीं है, बट एवरी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वांट इंजीनियर हु इज वेरी गुड इन एजेंटिक सिस्टम डिजाइन, बिकॉज द मेन प्रॉब्लम हियर इज व्हाट कि चीजें पता है आपको, बट यू नीड टू ब्रिंग एवरीथिंग इन वन वन प्लेस टू मेक दैट काइंड ऑफ अ प्रोडक्शन रेडी थिंग्स, राइट. तो ये सब चीजें, और दिस थिंग्स विल कम फ्रॉम द एक्सपीरियंस गाइस. जितना आप एक्सपीरियंस लोगे पर्टिकुलर, बिकॉज यू विल गेट टू नो वेर एग्जैक्टली द थिंग्स आर गेटिंग फेलियर. इवन तो आपका 10-15 साल भी एक्सपीरियंस है, देयर माइट बी चांसेस दैट आपकी बहुत सारी चीजें आप मिस कर दो, देन लेटर यू विल हैंडल इट बाय बिल्डिंग दैट काइंड ऑफ थिंग, राइट. सो यहाँ पे आपका चॉइस है व्हाट एग्जैक्टली यू विल यूज, बट हाँ डेफिनेटली यू आर हैविंग एजेंट्स to take that action, to take that decision, right? Particularly if the computation wise questions is coming towards you, right? तो ऐसे बहुत सारे, not only, even though MCP use web search, right? Client server architecture the MCP is providing to you. जैसे दूसरा ये मैंने बनाया है, ऐसा ही दूसरा सेम टू सेम आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है MCP सर्वर, राइट. सो बहुत सारी चीजें उसको करने के लिए, हाँ. एंड देयर इज अ वन मोर अप्रोच गाइस, अगर आपको स्ट्रक्चरल नहीं करना है, देयर इज अ वन मोर अप्रोच कॉल्ड RM25. दिस इज अ वेरी फेमस टेक्निक, although it is combined with the RAG nowadays. जो एडवांस रैग है ना, उसके साथ कंबाइंड है RM25. दिस इज व्हाट, दिस इज द टेक्निक. इट इज गिविंग यू द की वैल्यू सर्च. जैसे कि मान लो जब भी आप एम्बेड कर रहे हो, तो वो आपको, जैसे मेरी कंपनी कंपनी के साथ वो टैग करेगा उसके लेट्स टेक नेम को, कंपनी के साथ वो टैग करेगा उसके कोई, मान लीजिए कंपनी के साथ टैग करेगा उसके रेवेन्यू को, राइट. या फिर कंपनी के साथ जो भी ये चीज है, इट इज स्टोरिंग अ डेटा इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर, राइट. जहां से क्या हो रहा है कि
मोस्टली दो प्रॉब्लम है गैस यहाँ पे, कि इट्स नॉट अबाउट द टेक्स्ट ओनली, हमारे को प्रॉब्लम न्यूमेरिकल डेटा के साथ भी है, right? So RM25 is such of one of the techniques where this technique is helping you to solve that particular problem, right? But जैसे कि मैं बता रहा हूँ, let me show you RM25. हाँ, एक काम करना guys, ये पेपर है अच्छा, आप इसको पढ़, टाइम मिले तो पढ़ लेना, बट this is the very beautiful techniques how exactly the things are happening. तो ये completely टेक्निक इज इंस्पायर्ड है हाइब्रिड सर्च से, राइट? अगर आप देखोगे तो हाइब्रिड सर्च नाम सुना है क्या? Everything they have given here. How it will work, you are having a query vectors, document chunks vector, dense retriever shine on, है ना, बहुत सारे, even though guys you can create a retrieval agents, right? ये सारी चीजें करने के लिए, right? तो RM25 कैसे काम करता है guys, you can go through this paper. Modern state of art techniques is coming, है ना, they are telling that BM25 is not dead, hybrid retrievals when many things will come, है ना. अब BM25 भी वो बोल रहा है कि ओल्ड हो गया है, right? Although अभी भी चल रहा है, बट दे आर टेलिंग दैट इट इज गेटिंग ओल्ड. अब कुछ लोग तो बोल रहे हैं रैग भी ओल्ड हो गया है ना, रैग इज ऑल्सो गोइंग टू डेड, है ना, तो आप डेड चीजें पढ़ रहे हो, राइट? बट गाइज टू अंडरस्टैंड द न्यू थिंग्स यू हैव टू नो द ओल्ड थिंग्स. सो आप इसमें इसमें से एक बार देख लीजिए कि हाउ RM25 विल वर्क, यू विल अंडरस्टैंड द थिंग. ठीक है, बिकॉज हाइब्रिड सर्च छोड़ो, इतना कौन है, यू आर हैविंग अ मेनी थिंग्स गैस, है ना. ठीक है, बट इतना याद रखिए कि यू आर हैव नॉट ओनली हैविंग अ दिस थिंग स्पेसिफिक टू दिस वन, ओके. बट हो सकता है ना, जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ guys. चलो ठीक है, देखिए, अ, एक एल्गोरिदम है गाइस, हैव यू हर्ड अबाउट द बाई डायरेक्शनल सर्च? नाम सुना है क्या? बाई डायरेक्शनल सर्च, कहीं सुना है क्या? कहाँ सुना है बताओ? बाई डायरेक्शनल LSTM तो मैंने नहीं बताया. ठीक है गाइस, ऑब्वियसली ग्राफ का क्वेश्चन. If you wanted to get a particular nodes in the graph, let's take you are having a big graph, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, करेक्ट. नाउ द मेन प्रॉब्लम हियर इज व्हाट गाइस, कि देखिए कि इफ आई गो विद अ सीक्वेंशियल काइंड ऑफ अ सर्चिंग थिंग्स, और मैं कोई भी अप्रोच यहाँ पे यूज करूं, राइट, जैसे कि सिंगल अप्रोच है, सिंगल एल्गोरिथम बेस्ड अप्रोच, राइट, सो ऑब्वियसली इट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग, राइट. बट बाई डायरेक्शनल सर्च क्या करता है, जैसे आपका टीम सॉर्ट है, इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ अ पाइथन, Python, whenever you are using a Python sort function, it is using a tim sort, right? Tim sort is a combination of a merge sort and the insertion sort. So Python sort function internally using the combination of this two sort, इसको हम बोलते हैं hybrid sort. Hybrid का मतलब ये होता है कि we are combining two algorithms to search it. This we call it as the hybrid sort. Similarly, guys, bidirectional search जो है वो भी आता है आपका हाइब्रिड सर्च में, और ये जो बाई डायरेक्शनल सॉर्टिंग है वो भी आपका हाइब्रिड सॉर्टिंग, राइट, जहां पे आप एक से ज्यादा एल्गोरिदम्स को यूज कर रहे हो. और एडवांस रैग में यूजुअली यू आर डूइंग अ हाइब्रिड सर्च, राइट, आप हाइब्रिड सर्च ही करते हो. तो यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ बाई डायरेक्शनल सर्च, दिस इज द फर्स्ट एल्गोरिदम दिस इज इंप्लीमेंटेड फॉर अ ग्राफ. अगर आपको यहाँ पे आप दो टेक्निक्स एक साथ लगाते हो, BFS टेक्निक एंड DFS टेक्निक.
ऊपर से BFS लगाते हो, नीचे से DFS लगाते हो टू सर्च अ पर्टिकुलर नोड इन द बाइडायरेक्शनल सर्च। और दिस इज, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दिस इज द एडवांस डेटा स्ट्रक्चर, बट एक सब्जेक्ट था हमको भी, एक्सपर्ट सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। वहां पे यू आर हैविंग अ ह्यूरिस्टिक algorithm space thing, है ना। वहां पे you are having a star algorithm. In that you will find out the bidirectional searches, right, where you are applying the BFS and DFS at the same time, right. By the way, A star is an algorithm that, which is the shortest path algorithm, which is used by the Uber to predict the shortest path. अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो you are having a multiple routes ना, it is finding you the shortest route for you, right. Although Rapido वाला long cut से ही लेके जाता है, but it is finding you the shortest route for you. So this is the kind of a hybrid search, है ना। आपको पढ़ना होगा तो you can go to the RM25, right. But हाँ, techniques कैसे काम करता है, it's a hybrid search based technique. If you want a more detail, you can go into that. समझेगा guys यहाँ तक? Okay. Now this is the most important thing, that okay, you can use this structural retriever, or you can use this kind of a technique, right. But nowadays in the advanced rack, this technique is getting combined with ये टेक्निक कंबाइन है आपके रैक पाइपलाइन में, विच इज अ BM25. आई एम नॉट टेलिंग दिस इज ओनली द टेक्निक्स दैट यू कैन फाइंड अ मल्टीपल टेक्निक्स टू डू दिस काइंड ऑफ। इतना समझेगा गाइस? ठीक है, आप BM25 भी बोल दिए तो वो खुश हो जाएंगे। ठीक, ठीक है गाइस। एनीवे, हाँ, अब मेरे पास एक क्वेश्चन है गाइस। लेट्स टेक सपोज, मैं क्वेश्चन के द्वारा ही आपको एडवांस रैक बता देता हूँ क्या होता है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स टेक सपोज, सपोज you have to build a rack system. आपको रैक सिस्टम बनाना है, सपोज यू हैव टू बिल्ड अ रैक सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे ना कंस्ट्रेंट है कि आई वांटेड टू बिल्ड फॉर अ बैंक, बिल्ड इट फॉर, या फिर मान लीजिए कोई आप चले गए मॉर्गन स्टैनली, है ना, ऐसी कंपनी में चले गए, या फिर जेपी मॉर्गन चेस, है ना, जहाँ पे फाइनेंशियली डेटा है आपके पास, राइट। सो build it for a bank, for example, right. Now guys, it is having all the data related to the bank, correct. Now the query come here, may I know, may I know the, may I know the premium spelling देख लो, may I know the premium for the home loan, home loan, correct. This is the query they are asking. You have built a rack system, right, for a bank, and the query is what, may I know the premium for the home loan, right. Now the system is responding the premium for a car loan, right. It is responding the premium for a car loan. Now the first question, right, how you will handle this. Second thing, how you will get to know, how will you get to know the problem is with chunking, right, embedding, retrieval, retrieval or re-ranking, correct. Question 3, what measures you can use here? See, measures आपको पता नहीं है, तो छोड़ो इसको, मेजर्स छोड़ दोगे ऐसा ना, क्योंकि अपन इतना डिटेल पढ़ नहीं रहना चाहिए तो। बाकी इसके लिए भी रिकॉल है, रिकॉल एट के, रिकॉल एट प्रेसिजन एट के, मेनी मेनी मेजर्स यू हैव, ब्लू स्कोर भी है, बट हम उतना नहीं पढ़ रहे, सो विल स्किप दैट पोर्शन।
But this is the question, guys. Right. The question here is what? Key. Suppose you have built a rack system, built for a bank. The query is what this kind of thing. May I know the premium for a home loan? But system आपको respond कर रहा है premium for a car loan. पहले तो problem है. Let's take as you are working in the production environment, AI ops engineer. Right. Now you need to handle this problem. Production बोले तो guys, first of all, you need to identify the root cause of the problem. Right? तो सोचिए guys, क्या सोच सकते हैं? Guys, यही चांस रहता है आपके प्रमोशन. ठीक है. क्योंकि बनाने वाले ने बना दिया रैक पाइपलाइन, है ना. मान लीजिए कि यू आर LLM इंजीनियर और AI इंजीनियर, यू बिल्ड इट, बट सॉफ्टवेयर डेवलपर तुरंत फॉल्ट निकालेगा. सो हाउ यू विल हैंडल दिस? अब तो आपको पूरी रैक पाइपलाइन पता है ना. आपने रिज्यूमे में भी डाल दिया कि आई नो रैक सर. कितना इजी है सर रैक. एक और क्वेश्चन, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन, आप सोचिए कैसे ना. जरा सोचिए बस. देखो, ऑल दो ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा. राइट. राइट. फिर अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो फिर आप छोड़ ही दोगे ये फील्ड, लिटरली. क्योंकि इस लेवल पे ये क्वेश्चन नहीं पूछे. राइट. बट हाँ, डेफिनेटली क्वेश्चन टू इज लाइक दिस. सपोज लेट्स टेक केस, यू आर हैविंग अ 80 millions document. You are having a 80 millions document, and you are having, let's take 2 billions chunks. So you are having a 80 millions documents and 2 billion chunks. ये real time system है rack का. Right. Now the question here is, guys, whenever you are asking a query, we are asking a query to the LLM. It is taking a 5 second. But I wanted to perform this operation in less than 2 seconds. Correct? तभी तो लो लेटेंसी में यूज होगा. राइट. द क्वेश्चन इज हाउ टू गेट दिस. दिस आर द टू क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू गाइस. आपको पता चल गया होगा एडवांस रैक का इंपॉर्टेंस. राइट. कि क्या प्रॉब्लम है आपके नॉर्मल रैक सिस्टम. कैसे बता सकते हो आप क्रॉस एनकोडर में प्रॉब्लम है? हाँ. रिट्रीवल प्रॉब्लम ही रिट्रीवल से रिलेटेड है गाइस. ऑब्वियसली रिट्रीवल प्रॉब्लम है. बट मैं बोल रहा हूं कि सी गाइस, यू कैन नॉट डायरेक्टली से. फिर तो आप बहुत ही स्मार्ट हो, आपने डायरेक्टली बता दिया सर क्रॉस एनकोडर में प्रॉब्लम है ना. प्रॉब्लम चंकिंग में भी हो सकता है, प्रॉब्लम एम्बेडिंग में भी हो सकता है, प्रॉब्लम रिट्रीवल में भी हो सकता है, प्रॉब्लम री रैंकिंग में भी हो सकता है. वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आप आइडेंटिफाई कैसे. मान लीजिएगा इसकी, जैसे आप बोलते हो ना कि एवरीवन नो हेलुसिनेशन प्रॉब्लम ऑफ LLM. मुझे वो फेलियर पॉइंट बता दो, आप कहाँ पे हेलुसिनेट कर रहा है, एग्जैक्ट वही पॉइंट पे जाइए. वहां से आप रूट कॉज निकाल के हैंडल कर रहे हो तो दैट इज अ सीनियर लेवल वर्क, है ना. कि एग्जैक्ट आई एम गेटिंग दैट फेलियर पॉइंट वेर एग्जैक्टली द LLM इज गेटिंग हेलुसिनेट. सिमिलर काइंड ऑफ अ थिंग है जहां पे मैं क्वेश्चंस आपको पूछ रहा हूं कि ठीक है, दैट यू आर द रिट्रीवल प्रॉब्लम है ना. बट रिट्रीवल प्रॉब्लम भी किस वजह से है? कि मेरे चंकिंग में प्रॉब्लम है, एम्बेडिंग में प्रॉब्लम है, रिट्रीवल में है, या री रैंकिंग में. राइट. बट मैं ब्लाइंडली बोल सकता हूँ कि इसी में प्रॉब्लम है. यू नीड टू हैंडल ना गैस.
तो कैसे चेक करोगे आप? दैट्स अ क्वेश्चन, राइट? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. एंड सेकंड थिंग इज 80 million documents that you have, right? And 2 billion chunks you have. Encoder output you check. 80 million documents you have, 2 billion chunks you have. And when we are asking a query to the LLM, it is taking a 5 second, right? Now I wanted to perform this operation in less than 2 seconds, guys. ठीक है. देखो guys, एक चीज तो है ना कि आप जो आंसर दे रहे हो ना, उस आंसर से बिल्कुल 101% ये पता चल रहा है कि आप फ्रेशर हो, राइट? क्योंकि दिस आंसर शुड नॉट बी अ वन लाइनर गाइस. मैं पहले देखूंगा ये कि कहां पे, किस किस केस पे मेरा सही से रिट्रीवल हो रहा है. मतलब मैं एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट को मैं हर केस में देखूंगा, चंकिंग के केस में देखूंगा, एम्बेडिंग के केस में देखूंगा. आई विल सी इन एवरी केस कहां पे सही हो रहा है, उसके बाद मैं देखूंगा कि कहां पे गलत हो रहा है. दिस इज द वे टू हैंडल द थिंग्स इन द प्रोडक्शन. तो मुझे सिर्फ, मैं सिर्फ ये नहीं बोलूंगा इनकोडर आउटपुट में, अरे भाई इनकोडर आउटपुट में है तभी तो रिट्रीवल वैसा मिला है आपको, राइट? बट हाउ इनकोडर आउटपुट इज कमिंग, इट इज कमिंग थ्रू द प्रोसेस ना. सो यू नीड टू चेक इन ईच एंड एवरी स्टेप ना गाइस. एंड आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ क्रॉस एनकोडर में देखो, सिर्फ इसमें देखो. इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. हाँ गाइस, एनी अदर आंसर? हाँ. इसके इस सेकंड तो गाइस मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि सेकंड रिक्वायर्ड अ सॉफ्टवेयर डेवलपर स्किल, है ना? मल्टीपल प्रोसेस किसमें? नहीं, 2 बिलियन चंक्स है भाई. 2 बिलियन चंक्स आपके डेटाबेस में स्टोर्ड, वेक्टर डेटाबेस. राइट? मैं तीन चार टॉपिक बता देता हूँ गाइस. RM25, हाइब्रिड सर्च, राइट? एंड mostly you talk about the advanced re-ranking, right? These are the three extra things will be there in the advanced crack pipeline particularly, right? और ये इन सारी चीजों को हैंडल करेगा, राइट? बट सेकंड क्वेश्चन जो है ना, वो वहां पे आपको एडवांस क्रैक पाइपलाइन भी डिफरेंट वे में यूज करना पड़ेगा. अच्छा ठीक है गैस. चंकिंग से क्या पता चलता है आपको whenever you are doing a chunking? क्या पता चलता है भाई चंकिंग से? whenever you are doing a chunking, what you will get to know? कौन से पार्ट में है? हम्म. बोलो राजे, कौन से पार्ट में है? ऐसा पता चलता है क्या? देखो गाइस, एक सिंपल सी बात है कि मुझे सर्च करना है प्रॉब्लम कहाँ पे है, राइट? तो कुछ लोग बोल रहे हैं क्रॉस क्रॉस एनकोडर को तो जाने दो अभी के लिए, राइट? एनकोडर आउटपुट आप बोल रहे हो. एनकोडर आउटपुट कहाँ से मिलता है आपको? प्रोसेस जो है आपका, तो उसमें देखिए कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है. उस केस पे देखिए आप चंकिंग कैसे हो रहा है, राइट? इतना तो देखिए भी कहाँ से डॉक्यूमेंट सही रिट्रीव हो रहा है. जैसे कि अगर मैंने कोई क्वेश्चन पूछा है कि हु इन्वेंटेड अ ट्रांसफॉर्मर, राइट? बट वो फाइंड आउट कर रहा है पाइथन एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? तो आप उस जगह पे देखिए कि वेदर एट दैट स्टेप द करेक्ट रिट्रीवल इज हैपनिंग और नॉट. अगर प्रॉब्लम वही से है, चंकिंग से ही है, तो मैं वहां पे ही चेंज कर सकता हूँ ना. आई आई विल हैंडल देयर. बिकॉज होता क्या है गाइस
कि वेन एवर यू आर डूइंग अ चंकिंग ना, जैसे कि मान लीजिए अगर मेरा एग्जांपल ऐसा है, जस्ट टू सेक ऑफ एग्जांपल बता रहा हूं, द रेवेन्यू द रेवेन्यू इज 12.5 million dollars, राइट? सो लेट्स से एक छोटा सा है, and whenever I am doing a chunking guys, there might be chances, आप अगर properly chunking नहीं करोगे, this will go into the another part and this will go into the another part. होता है ऐसा बहुत बार. That's the reason आप chunking भी कर रहे हो तो you have to use appropriate chunking only. हाँ वही तो बता रहा हूँ. हाँ, so this one will be this and this one will be this. So guys यहाँ पे ना you have to decide है ना, chunking में problem है, right? Even though last you need to check a problem with the re-ranking also, कि सही से वो re-rank कर रहा है कि नहीं कर रहा है, right? So this thing is usually is handled by the your advanced rack. Okay, अब आइए थोड़ा सेकंड क्वेश्चन पे. सेकंड क्वेश्चन गाइस, इसके सॉल्यूशन बहुत सारे हैं. एक सॉल्यूशन मैं बताता हूं आपको कि रीडिजाइनिंग, इसको रीडिजाइन कर दो, बट रीडिजाइन विल बी ए कॉस्टली गाइस, है ना? फिर से रीबिल्ड करना रैक को, फिर से नया नई चीजें करना है, फिर से रीरन करना है, डेफिनेटली इट विल बी ए कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, राइट? ठीक है. सेकंड वन इज गाइस hybrid search. This is the core idea behind the advanced rack, right? Hybrid search, right? Hybrid search कैसे करोगे? नॉर्मल सर्च से ज्यादा हाइब्रिड सर्च आपका फास्टर है गाइस, कंपेयर टू द नॉर्मल सर्चिंग यू आर डूइंग. हाइब्रिड सर्च इज मोर फास्टर. और एक है गाइस, आपने नाम सुना है डेटाबेस शार्डिंग, right? This is the very famous concept in the system design, which is a database sharding, right? ठीक है गाइस, आइए इस पॉइंट पे. ठीक है, सो व्हाट आई कैन डू, है ना? दो तीन कॉन्सेप्ट गाइस देखिए. लेट मी शो यू डेटाबेस शार्डिंग. डेटाबेस शार्डिंग बड़ा फेमस कॉन्सेप्ट है, पार्टीशनिंग जिसको बोलते हैं, शार्डिंग वर्सेस पार्टीशनिंग. आई होप एक डायग्राम से आपको सब समझ में आ जाएंगे. ऑब्जर्व करिए इस डायग्राम को कैसे ना. फर्स्ट विल चेक अ चंक, its size will check the importance. हाँ guys, सिस्टम डिजाइन क्वेश्चन, लेट मी गो बैक. कहता अच्छा डायग्राम करते हैं. जस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन शार्डिंग एंड पार्टीशनिंग, तो आप इसको कोरिलेट कर पाओगे. कहता अच्छा डायग्राम. ठीक है. yes. दिख रहा है क्या? कि और जूम आउट करूं? थोड़ा इसको कोरिलेट करिए और देखिए कि हाउ इट विल हेल्प यू टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम.
हाँ, दिख नहीं रहा है। काम करते कैसे, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं रैक पे, है ना, उससे ज्यादा बेहतर हमें समझेगा आपको कि क्या प्रॉब्लम्स है रैक में, राइट। तो फास्टली लैंग चेंज चालू करने दीजिए मेरे को, हगिंग फेस और लैंग चेंज, दैट विल बी बेटर। तो वहां पे हम रियल टाइम इशू देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, सो दैट यू विल गेट अ मच मोर क्लैरिटी, राइट। बट रिमेंबर वन थिंग गाइस, मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं ना कि generative AI and agentic AI roles, particularly in the case of operations and productions, are the software developer roles guys। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं ये, राइट। जहां पे you need to handle the things in the production, you are dealing with the highly scalable system, they are asking you to build this kind of a scalable system, and ऐसे ऐसे environment में आप काम करोगे, particularly in the case of production, राइट। तो आपके theoretical knowledge के अलावा भी आपको अच्छा खासा operations और production का ज्ञान चाहिए to be good in this particular domain, राइट। बट अभी आप फ्रेशर्स हो तो जो भी नॉलेज आपके पास है दैट विल बी मोर देन इनफ, राइट। बिकॉज दिस थिंग यू विल गेन आफ्टर गेटिंग 1 or 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, ऑटोमेटिकली आपको चीजें आ जाएंगी, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, दैट यू विल गेट टू नो, राइट। बट आपको चीजें आ जाएंगी 1 या 2 साल के टाइम से, यू विल बी वेरी गुड इन द प्रोडक्शन, बिकॉज आप दिन भर उसे में रहोगे, तो यू विल हैंडल द थिंग वेरी प्रॉपरली। आप देख के रूट कॉज बोल दोगे, दैट इज फॉर श्योर, बट अगर आप सही से करोगे, राइट। बट अभी मेन गोल है कि freshers interview also is a very crucial thing for you, right? But still guys, if you are preparing the things in the scenario based na, at least आपको पता तो हो कि what are the problems are happening and how the things are getting handled, because database sharding wording थोड़े advanced concepts है guys, right? Particularly in the case of software development and all this thing, this is usually comes in the system design role for a software development and engineer, right? But guys एक चीज आप अपने जहन में रखिए कि the next era will be the agentic system design, इतना याद रखिए, because it's not a MCP, it's not a LangChain, LangGraph, this framework based learning temporary है guys, the main thing will be the core, which is the system design part. So अगर आपको 2 साल में कुछ पढ़ना भी है अपार्ट फ्रॉम दिस, फोकस ऑन द एजेंटिक सिस्टम डिजाइन इफ यू आर ट्राइंग टू गेट इनटू द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड if you literally wanted to read, you start from the ML system design, right? You start with the ML system design, Gen AI system design, right? And from there, because it's a need to build a scalable systems, right? ये need है, right? To build that kind of a scalable system which handles everything, right? Because real time में होता क्या है guys, you are passing one query, it is giving a different something, different kinds of a thing only। बहुत बार ऐसे होता है कि जो आप दे रहे हो उसके विपरीत ही आपको चीजें मिल रही हैं। दिस इज द यूजुअल प्रॉब्लम विद एनी प्रोडक्ट, जब भी कोई प्रोडक्ट प्रोडक्शन में जाएगा, दिस इज द कॉमन प्रॉब्लम इज हैपनिंग, इसलिए टाइम लगता है लॉन्च करने को, बहुत सारी चीजों को टाइम लगता है, दैट्स द रीजन। बट गाइस आप जाइए थोड़ा डेटाबेस शार्टिंग कॉन्सेप्ट में से, राइट। दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, राइट। एनीवे हाइब्रिड सर्च तो हम बात करेंगे ही, right, because when we'll take a rack project, right, RM25 also will use in the project, right? Because default है use तो करना ही है RM25, right? Okay. But conceptually भी अगर आपको चीजें पता हो तो वो ज्यादा बेहतर है, समझा क्या, राइट। सो गाइस दिस इज द काइंड ऑफ अ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आर गेटिंग इन द रैक, ओके। बाकी जो क्वेश्चंस मैंने इससे पहले पूछे, दैट इज ऑल द फ्रेशर लेवल क्वेश्चंस related to the rank, right? But they won't ask you particularly a scenario based question, because scenario based question particularly in the production requires other knowledge also, which is a software development knowledge, right? तो कॉम्प्लिकेशन इसलिए है प्रोफाइल में भी
जेन एआई और एजेंटिक एआई की, कि क्यों आपको फास्ट एपीआई, क्यों आपको कोड लिखने को बोल रहे हैं? बिकॉज दिस प्रोफाइल इज कम्स अंडर द सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। दैट्स द रीजन कि अब सिंपली अगर एमएल का प्रोफाइल है तो दे विल नॉट आस्क यू टू राइट अ कोड इन एसक्यूएल, उनको पता है किसको सिंटैक्स याद रहेंगे। But particularly if they are asking you about the software development and all these things, definitely they are asking this kind of question. तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप जेन एआई एलएलएम इंजीनियर के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपका प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम द डीप लर्निंग। उसके लिए मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग इज अ प्री रिक्विजिट, एंड देन द रिमेनिंग थिंग्स विल हैपन, राइट? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस, समझाया गया, दिस इज द एंटायर रैक, है ना? अब हाइब्रिड सर्चिंग कैसे होती है, शार्डिंग कैसे होती है, वो हम देखते हैं फिर प्रोजेक्ट के टाइम एग्जैक्टली कैसे हो रहा है। बिकॉज अगर आपको प्रॉब्लम समझ गया तो आपको चीजें भी समझ गई। बट हाँ गाइस, हम कोई इतना कितने इतने इतने मिलियंस पीडीएफ तो हम नहीं लेने वाले, राइट? विल ट्राई टू टेक हार्डली 100 पीडीएफ्स ऑफ 300 400 पे, उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, राइट? इट्स नॉट लाइक दैट। बट द मेन क्वेश्चन ये है कि जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो ना तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आने चाहिए, राइट? बट आप चैट जीपीटी से रन करके रखोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएंगे, राइट? सो दैट्स द रीजन कि व्हेनेवर यू आर बिल्डिंग अ रिकॉर्ड योर प्रॉब्लम्स, चाहे वो सिंपल एरर ही क्यों ना हो, because whenever you are start explaining the project to the someone else ना, you can explain it in very better way। समझा क्या? तो जो कोई भी प्रोजेक्ट आप डाल रहे हो ब्लाइंडली मत डालिए गाइस। आपको लग रहा है कि जितने डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट डालूंगा तो मेरा रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना जान लीजिए। सिर्फ प्रोजेक्ट से कुछ नहीं होता है। हाँ। डू वी नो हाउ मेनी टोकन्स? फर्स्ट ओनली गाइस गो बैक टू द कॉन्टेक्स्ट विंडो, है ना? कॉन्टेक्स्ट विंडो में कितने टोकन्स बैठते हैं, राइट? जितने भी टोकन्स आपके बैठते हैं, राइट? बट रिमेंबर वन थिंग गाइस, उसी के लिए तो आप चंकिंग कर रहे हो ना। अगर मुझे चंकिंग किस बेसिस पे हो रहा है गाइस? जैसे कि मोस्ट प्रोबेबल चीजें आनी चाहिए मेरे चंकिंग वेक्टर में, राइट? मोस्ट प्रोबेबल चीजें आनी चाहिए, क्योंकि हमने बोला था कि हमको ऐसे चीजें देनी है कॉन्टेक्स्ट विंडो में कि जो इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा भी ना हो बहुत कम भी ना हो, रिलेवेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी देयर, राइट? तो आई डोंट थिंक सो यू हैव टू लुक एट इनटू द टोकन्स। आप स्टार्ट करो strategies, chunking strategies, right? You start with a chunking strategy, then you go with the embedding, then you go with the encoder output retrieval, then you go to the re-ranking। re-ranking में प्रॉब्लम होगा तो ये सॉल्व हो जाएगा, re-ranking में होगा तो इट इज गेटिंग सॉल्व वेरी इजीली। बट अदर प्रॉब्लम यू नीड टू गो एंड मैन्युअली हैंडल इट, राइट? नहीं तो कोई ऐसा एजेंट बना दीजिए, दोज विल हैंडल दिस काइंड ऑफ प्रोडक्शन इशू। नहीं बन सकता कैसा, अभी बोल दे, प्रोडक्शन इशू वैसे बोल के नहीं आता है। ठीक है, दैट इज नॉट। कौन सा क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2? जनरली मीन्स आई डेंट गॉट योर क्वेश्चन। गैस आपको पता, यूजुअली गैस जो भी एलएलएम आप यूज कर रहे हो, यू नो द कॉन्टेक्स्ट विंडो साइज, है ना? आपको पता होती है, ये GPT-1 GPT-2 GPT-3, दे आर स्पेसिफाइंग ना कि कितने टोकन्स यू कैन पास, है ना? कितने, मैंने आपको बताया भी था शुरू में, अगर आप ध्यान दिए होंगे क्लास में तो, कि आई टोल्ड यू दैट हाउ मेनी tokens you can have in this particular architectures, all this, so I think you go to the previous one lecture, you will get to know how many tokens you can pass। but guys ये questions जो है, this question का टोकनाइजेशन से कोई रिलेशन नहीं, ये जनरल प्रॉब्लम है जो आती है रैग में। बिकॉज सब कुछ सही चल रहा है, अब सब कुछ सही चल रहा है ना, तो
देखो कि टाइम कैसे कम कर सकते। गाइस देखो, ये लाइफ में भी होता है। अगर आपके लाइफ में सब कुछ चल रहा है ना, तो समझ लेना कोई बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। उससे बेहतर ये है कि थोड़ा सा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दो, है ना। तो आप लगे रहोगे उस प्रॉब्लम। सो दैट्स द रीजन कि हियर आल्सो you need to, everything is fine here but the latency will be high, right? So you need to reduce the time। तो मैंने आपको एक आंसर बता रहा हूँ, यहाँ पे टोकनाइजेशन का कोई सेंस नहीं बनेगा इन दिस केस, राइट, अगर आप उस सेंस में सोच रहे हो तो, राइट। बट क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम ही वैसा रेस किया कि वो बोल रहा है कि मुझे टाइम कम करना है। टोकन विंडो, अगर कॉन्टेक्स्ट विंडो का कोई लिमिटेशन होता तो ये क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता। आई होप गाइस गेटिंग, है ना। अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो देयर इज अ वन पीडीएफ आई विल शेयर विथ यू, है ना। बहुत अच्छी पीडीएफ है। So you read from there, they have built the rack architecture from this। बट गाइस मेरा सजेशन आपसे है कि आप पहले जो है उसको पढ़िए। पहले बी गुड इन ANN CNN RNN, देन बाकी चीजों में। पता चला एडवांस रैक कोई पूछ ही नहीं रहा आपसे, है ना। ठीक है गाइस, टुमारो विल स्टार्ट दी हगिंग फेस। अब जितने इशू और थ्योरी आती है गाइस, मैं आपको प्रोजेक्ट के साथ ही बताता हूँ, बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम और इसी वीक हमको खत्म करना है कुछ भी करके। We don't have a time other than this week, guys. This is the last week of this class, right? Although हमने ज्यादा ही पढ़ा है, but still we have to learn more. गैस समझ में तो आ रहा है ना, सच्ची सच्ची बताओ कि बहुत ही अलग लग रहा है सर, ये क्या क्या ला रहे हो, डेटाबेस शार्डिंग, ये वो। तो देखो गैस, है ना, कि आप इंडस्ट्री में भी जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें कान पे पड़ेंगी, राइट। सो दैट्स द रीजन, बी फैमिलियर विद दिस थिंग्स। इसलिए मैं बोला ना गैस कि गेटिंग अ कंपनी एंड गेटिंग अ गुड कंपनी बहुत डिफरेंस है, राइट। और एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट बेस इज नॉट एट ऑल इजी गैस, है ना। इतना इतना इजी नहीं है प्रोडक्ट बेस में जाना, राइट। ओके गैस, फाइन देन, बाय। कल हम हगिंग फेस स्टार्ट करते हैं।